Now we have chemical equations. Activity 1.1 can be described as when a magnesium ribbon is burnt in oxygen, it gets converted to magnesium oxide. The description of chemical reaction in a sentence form is quite long. It can be written in shorter form. The simplest way to do this is to write it in the form of word equation. The word equation for the above reaction would be magnesium plus oxygen with magnesium oxide. So this is the word equation, and we will later see the symbolic equation, how we will write this in the form of symbol to make it more precise and more simpler. So if earlier if we tried to write this equation earlier, it should be written as magnesium ribbon reacts with oxygen to give magnesium oxide. It should be so long, lengthy. Then later we converted into word equation simply by putting plus sign and the arrow. uh, Magnesium plus oxide gives magnesium oxide. The substance that undergo chemical change in this reaction, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर द रिएक्टेंट्स। तो किसी भी रिएक्शन के दो पार्ट होंगे, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। जैसे कोई कंपाउंड है ए प्लस बी, अगर वो मिलकर सी बना रहे हैं या फिर सी प्लस डी, तो लेफ्ट वाला पार्ट होगा वो हमारा होगा रिएक्टेंट, और राइट वाला पार्ट होगा वो होगा प्रोडक्ट। और किसी भी दो कंपाउंड के बीच में हम प्लस साइन से डिनोट करेंगे कि वो कंपाउंड मिक्स हो रहा है या फिर रिएक्ट कर रहा है, और एरो हमें डिनोट करेगा कि वो फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है उसका। और प्रोडक्ट में भी वो प्लस साइन से सेपरेट करेंगे दो कंपाउंड्स को। सो अ वर्ड इक्वेशन शोज चेंज ऑफ रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट थ्रू अ एरो प्लेस्ड बिटवीन देम। तो ये एरो बताता है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है। The reactants are written on the left-hand side with a plus sign between them. Similarly, products are written on the right-hand side with a plus sign between them. The arrowhead points toward the product and shows the direction of reaction. तो arrow direction of reaction बताता है, ठीक है। Now, how do we write a chemical equation? Writing a chemical equation. Is there any shorter way? तो shorter way जो वहाँ पर बोल रहा था कि पहले सेंटेंस था, सेंटेंस से वर्ड पे लाया, अब वर्ड से हम सिंबल पे ले जाएंगे तो वो और शॉर्ट हो जाएगा, शॉर्टर हो जाएगा मतलब। Chemical equation can be made more concise and useful if we use chemical formula instead of words. A chemical equation represents a chemical reaction. If you recall formula of magnesium oxide and magnesium oxygen and magnesium oxide, the above word equation can be written as Mg, that is a symbol for magnesium, O2, that is a symbol for oxygen, and MgO, that is a symbol for magnesium oxide. So here we wrote every uh, chemical in the form of its symbol, elements and compound in the form of symbol. Like magnesium we wrote Mg, oxygen we wrote O2, and magnesium oxide as MgO. Count and compare the number of atoms of each element on the LHS of arrow. So यहाँ से बैलेंसिंग का बता रहा है कुछ, ओके ठीक है, बैलेंसिंग। तो बैलेंसिंग का बेसिकली डिपेंड करता है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे। जैसे कि कोई भी रिएक्शन हो रहा है तो उसमें रिएक्शन में ना ही कोई एक्स्ट्रा मास क्रिएट हो सकता है या फिर ना ही मास उसका डिक्रीज कर सकता है। तो वो मास हमेशा कंजर्व्ड रहेगा, तो जितना मास उसके रिएक्टेंट में रहेंगे उतना ही मास उसके प्रोडक्ट में होना चाहिए। या फिर सिंपली कह लो, जितना एटम उसके रिएक्टेंट साइड में है उतना ही एटम प्रोडक्ट साइड में होना चाहिए, तो ही वो रिएक्शन बैलेंस्ड रिएक्शन होगा, अदरवाइज वो अनबैलेंस्ड रिएक्शन होगा। जैसे द वर्ड इक्वेशन फॉर एक्टिविटी 1.3 में भी रिप्रेजेंटेड जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड विल गिव जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन, जो कि पहले हम देख चुके हैं ऑलरेडी। तो इसका हम इक्वेशन लिखें तो जिंक प्लस H2SO4 विल गिव ZnSO4 प्लस H2। तो यहाँ पर देखो जिंक का एक एटम है, यहाँ भी एक एटम है, ठीक है, जिंक है। हाइड्रोजन का दो एटम है, दो एटम है। सल्फर का एक, सल्फर का एक, ऑक्सीजन का चार, ऑक्सीजन का चार। तो ये ऑलरेडी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन।
वाओ। तो यहाँ नीचे वही बोल रहा है कि देख कंपेयर करना है कि कितने कितने एटम्स हैं आरएचएस में एंड एलएचएस में, और फिर बैलेंस किया है। तो यहाँ पर जैसे जिंक का एक है रिएक्टेंट साइड में और एक है प्रोडक्ट साइड में, तो इसमें हर एक एटम रिएक्टेंट में जितना है उतना ही प्रोडक्ट में है, तो ये ऑलरेडी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। नाउ लेट अस ट्राई टू बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। अब आयरन और वाटर को रिएक्ट करके Fe3O4 और H2 बना रहा है। तो यहाँ पर देखो Fe का एक एटम है, यहाँ पर तीन है, तो ये पहले ही पता चलेगा कि अनबैलेंस्ड है। तो इसमें बैलेंस करने के लिए हम सबसे पहले कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम एटम जिसका है उसे पहले बैलेंस कर दें। जैसे इसमें ऑक्सीजन का चार एटम है यहाँ पर, ठीक है, तो हम इसे बैलेंस करना चाहेंगे। तो यहाँ पर H2O, तो जैसे कोई कंपाउंड लिखा है और हमें ऑक्सीजन को चार करना है, तो हम यहाँ पे या फिर यहाँ पे चार नहीं लिखेंगे, ये गलत होगा। यहाँ यहाँ चार नहीं लिख सकते। अबे यार, क्या हो गया इरेजर को। हम्म तो उसे बैलेंस करने के लिए हम टोटल कंपाउंड में उस फोर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने H2O में फोर से मल्टीप्लाई किया, तो हमारा ऑक्सीजन चार हो गया और हाइड्रोजन जो था वो टू से एट हो गया। तो हमें हाइड्रोजन को भी बैलेंस करना होगा, तो यहाँ पे फिर से फोर लगा दूंगा, तो यहाँ पे एट हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पर एट हाइड्रोजन यहाँ भी है, चार ऑक्सीजन और Fe3 तीन आयरन है, तो फिर यहाँ पर तीन लगा देंगे। तो ये पूरा केमिकल रिएक्शन हमारा बैलेंस हो गया। 3Fe+4H2O will give Fe3O4 प्लस 4H2। अब देखो तीन Fe आठ H2 चार ऑक्सीजन, तो ये ओवरऑल पूरा अब बैलेंस हो गया, पहले अनबैलेंस्ड था। तो ये आगे लिखा है कि स्टेप 1 टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, फर्स्ट ड्रॉ द बॉक्सेस। बेकार है, कंपलसरी नहीं है बॉक्सेस बनाना। तो अब उसके बाद फिर नंबर लिस्ट करना है, तो ये सब तुम माइंड में कर सकते हो। ये इतना देखने में लग रहा है कि इतना लंबा स्टेप करना होगा, पर नहीं, ये सब तुम माइंड में कर सकते हो कि आयरन एक है तो लेफ्ट हैंड में इतना है, राइट हैंड में इतना है, तो कितना से करेंगे तो हमारा ये बैलेंस हो जाएगा, इक्वल आ जाएगा। तो वो सब है, तो एक बार मैं रीड कर देता हूँ। लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द अनबैलेंस्ड इक्वेशन। लाइक आयरन का लेफ्ट हैंड साइड में वन है, राइट हैंड साइड में थ्री है, तो अनबैलेंस्ड है। एच का दो है, ठीक है। ऑक्सीजन वन है एंड राइट हैंड साइड में फोर है। इट इज ऑफन कन्वीनियंट टू स्टार्ट बैलेंसिंग द कंपाउंड दैट कंटेन द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। तो ये जो मैक्सिमम नंबर जो कंटेन करता है उसे बैलेंस करेंगे पहले। इट मे बी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट in the compound. Select the element which has the maximum number of atoms using the criteria. We select Fe3O4 and the element oxygen in it. तो Fe3O4 कंपाउंड को सेलेक्ट किया और ऑक्सीजन एटम को सेलेक्ट किए, ठीक है। देयर आर फोर ऑक्सीजन एटम ऑन RHS एंड ओनली वन इन LHS। तो LHS में एक है, RHS में चार है, तो उसे बैलेंस करने के लिए हम टोटल इस कंपाउंड में फोर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इनिशियल वन इन H2O, ऑक्सीजन का बात हो रहा है यहाँ पर, एटम्स इन ऑक्सीजन, तो वन इन H2O और प्रोडक्ट में चार है, तो बैलेंस करने के लिए हम चार से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों तरफ बैलेंस हो जाएगा। To equalize the number of atoms, it must be remembered that we cannot alter the formula of compound or elements involved in the reaction. For example, to balance oxygen atom, we can put coefficient 4 as 4H2O and not H2O4 और H2O whole 4। जो मैंने पहले बताया था कि हम फोर को टोटल कंपाउंड में मल्टीप्लाई करेंगे, ना कि किसी एक एलिमेंट में। तो यहाँ जो होल फोर जो है, ये बेसिकली ये भी गलत तरीका है रिप्रेजेंट करने का। हम जब भी बैलेंस करेंगे तो उस कंपाउंड के आगे हम फोर लिखेंगे, या फिर जो भी उसका बैलेंस करने का कोफिशिएंट होगा वो। नाउ द पार्शियली बैलेंस्ड इक्वेशन बिकम्स Fe4H2O, Fe3O4 एंड H2। तो ये पार्शियली बैलेंस्ड है, अभी भी कम्प्लीटली बैलेंस्ड नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे आयरन का एक है और यहाँ पे तीन है, तो अभी भी ये कम्प्लीटली बैलेंस्ड नहीं हुआ है। So the next step is Fe and H atoms are still not balanced.
Pick any of the elements to proceed further. Let us balance hydrogen atom in the partially balanced equation. To equalize the number of H atom, make the number of molecules of hydrogen as 4 on RHS. तो रिएक्टेंट में इनिशियली 8 H2 एटम्स है और प्रोडक्ट में हमारे पास 2 ही है। तो हमें प्रोडक्ट में 8 करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 8 एटम जो कि 4 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। ठीक है, तो इक्वेशन कुछ अब इस तरह हो जाएगा, Fe+4H2O गिव Fe3O4+4H2। तो H2 बैलेंस हो गया, O बैलेंस हो गया, अब बच गया क्या, आयरन। तो आयरन बैलेंस करना है तो हम आगे 3 लगा देंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा। तो नाउ स्टेप 5 इज examine the above equation and pick up the third element which is not balanced. You find that only one element is left to be balanced, that is iron. तो इनिशियल आयरन में रिएक्टेंट में 1 है और प्रोडक्ट में 3 है, तो बैलेंस करने के लिए रिएक्टेंट में हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इक्वलाइज Fe वी टेक 3 एटम्स ऑफ Fe ऑन LHS। तो फाइनली जो रिएक्शन होगा वो 3Fe+4H2O प्लस Fe3O4+H2 बन जाएगा। तो ये फाइनली हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गया। So the numbers of atoms of element on both sides of equation 1.9, which is this, are equal. This equation is now balanced. This method of balancing chemical equation is called hit and trial method, as we make trials to balance the equation by using a smallest whole number coefficient. तो hit and trial है तो इसका मतलब ये नहीं कि बहुत बार ट्राई करना पड़ेगा, तुम्हें देखते ही पता चल जाए कि क्या करना है, किसे पहले बैलेंस करना है, किसे बाद में बैलेंस करना है, बस प्रैक्टिस थोड़ा कर लेना। सो नाउ अब किसी भी इक्वेशन को जब बैलेंस करेंगे तो उसका फिजिकल स्टेट लिखना भी कंपलसरी होता है कि वो सॉलिड स्टेट में है या फिर एक्वस है, लिक्विड है या फिर स्टीम है, गैस है, तो वो सब भी लिखना ज़रूरी होता है। तो carefully examine the above balanced equation. Does this equation tell us anything about the physical state of each reactant and product? तो ये इक्वेशन हमें कुछ भी नहीं बता रहा है। ठीक है, नो इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन गिवन इन दिस इक्वेशन अबाउट देयर फिजिकल स्टेट्स। टू मेक अ केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव, द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर मेंशन्ड along with their chemical formula. The gaseous, liquid, aqueous and solid state of reactants and products are represented by the notations GL, G for gas, L for liquid, AQ for aqueous and S for solid respectively. The word aqueous, AQ, is written in the reactant or product in the present as a solution of water. तो जैसे अगर कोई रिएक्शन है, जैसे अगर जिंक वाला एग्जांपल नीचे दे रखा है ना, तो वही ले लेते हैं। 3Fe+4H2O will give Fe3O4+4H2। 4H2, ठीक है। तो यहाँ पर आयरन हमने सॉलिड लिया और वाटर को गैस फॉर्म, वेपर फॉर्म में या फिर स्टीम लिया। Fe3O4 जो बना ये भी एक सॉलिड बनेगा और H2 गैस के फॉर्म में इवॉल्व हो जाएगा। तो इसमें कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम रिएक्शन करा रहे हैं तो हमने एक आयरन मेटल लिया, मान लो सॉलिड है तो आयरन मेटल लिया, और उस पे हमने स्टीम स्टीम डाला या फिर गैसियस फॉर्म लिया है, तो वाटर गैसियस फॉर्म में स्टीम के फॉर्म में रहता है, तो हमने उस पर स्टीम डाला तो वो हमें Fe3O4 बना कर दिया। Fe3O4 जो कि रस्ट है वो भी एक सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करा दिया। तो अब इससे SG ये जो सिम्बॉल्स हैं फिजिकल स्टेट वो हमें बता रहे हैं कि हमने किस टाइप के कौन सा रिएक्टेंट लिया और कैसा हमारा प्रोडक्ट मिला। तो हमने यहाँ पे आयरन लिया सॉलिड और वाटर लिया स्टीम के फॉर्म में, तो हमें जो Fe3O4 जो रस्ट मिला वो भी सॉलिड था और हाइड्रोजन जो वो था वो गैस के फॉर्म में हमें मिला। तो हमें फिजिकल स्टेट्स बता रहे हैं कि किस किस फॉर्म में reactant or product exist कर रहे हैं। So now note that the symbol G is used with H2O to indicate that in this reaction water is used in the form of steam। ठीक है, usually physical state are not included in a chemical reaction, sorry, chemical equation,
unless it is necessary to specify them. Sometimes the reaction conditions such as temperature, pressure, catalyst, etc. for the reaction are included above or below the arrow in the equation. तो टेम्परेचर और प्रेशर तो पता है तुम्हें। कैटलिस्ट वो होता है जो किसी भी रिएक्शन के स्पीड को इंक्रीज कर सकता है या डिक्रीज कर सकता है। तो बेसिकली मोस्ट ऑफ द केस में हम इंक्रीज करने के लिए ही यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें रिएक्शन जल्दी कराना होता है। तो उस केस में हम कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं। तो हाँ, कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, जैसे एक मिनट। हाँ, CO कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिएक्ट्स at 340 atm to give CH3OH। तो जैसे मान लो एक कंटेनर है जिसमें हमारे पास CO गैस भरा हुआ है और प्लस में H2 गैस भरा हुआ है, और ये सील्ड कंटेनर है, पूरा क्लोज्ड है। और हमने किसी इंस्ट्रूमेंट से इसका प्रेशर कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर देगा। तो इसका प्रेशर जब 340 एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आएगा, तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करके CH3OH बना लेंगे, जो कि अंदर में लिक्विड के फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। तो और जब हम प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो दो चीज़ हो सकता है, या तो ये यही रह जाए CH3OH के फॉर्म में ही, या फिर वापस से ये बन जाए। तो उसे डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम एरो का, जैसे कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम प्रेशर हटाएंगे तो वापस से हमें ये नहीं मिलेगा बल्कि यही रहेगा। तो जैसे अगर सिंगल एरो दिया है तो इसका मतलब हुआ कि फॉरवर्ड रिएक्शन है, जो कि पीछे नहीं आएगा। अगर एक बार हमने ये प्रोडक्ट बना लिया, प्रेशर हटा दो तो वही रहेगा। लेकिन अगर हमें ऐसा एरो दे रखा है, तो अगर हम प्रेशर इंक्रीज किए तो हमारे पास ये प्रोडक्ट आया, लेकिन हम प्रेशर जैसे जैसे ही डिक्रीज करेंगे हमारे पास वापस से ये रिएक्शन पीछे आने लगेगा, और CH3OH जो है वो टूट कर H2 प्लस CO में कन्वर्ट होने लगेगा। अगर ऐसा सिंबल दिया है तो इसमें सिंगल एरो दिया है, इसका मतलब ये हमेशा फॉरवर्ड रिएक्शन है। एक बार रिएक्शन हो गया तो प्रेशर हटा दो या कुछ भी कर दो, ये हमेशा CH3OH के फॉर्म में ही रहेगा। और दूसरा रिएक्शन है 6CO2 aqueous plus 12H2O liquid reacts in the presence of sunlight इन द क्लोरोफिल। बेसिकली यहाँ पे क्लोरोफिल कैटलिस्ट नहीं है, एक तरह से एक टूल हो गया जिसमें ये रिएक्शंस हो रहे हैं। तो क्लोरोफिल तुम्हारा एक तरह से टूल की तरह एक्ट करेगा, और कैटलिस्ट के फॉर्म में ये सनलाइट एक्ट करेगा। तो 6CO2 aqueous plus 12H2O liquid reacts in the presence of sunlight in chlorophyll to give C6H12O6 aqueous plus 6O2 aqueous plus 6H2O liquid। तो यहाँ पे जो AQ ये सब, ये तो फिजिकल स्टेट शो कर रहा है कि किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। तो ये दो रिएक्शंस हैं। ओके, नाउ तो नाउ अब बोल रहा है कि यूजिंग these स्टेप्स कैन यू बैलेंस इक्वेशन 1.2 गिवन इन द टेक्स्ट अर्लियर। तो इक्वेशन 1.2 क्या था यार, एक बार देख लेते हैं। इक्वेशन 1.2, हाँ, Mg+O2। तो इक्वेशन 1.2 ये रहा हमारा प्लस पास। Mg को तो हमने पहले ही बैलेंस कर रखा है, पर अब बोल रहा है तो कर लेते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन O, देखो दो दो एटम्स है ऑक्सीजन के, यहाँ पर मॉलिक्यूल है। बेसिकली हम ऑक्सीजन, ये मैंने बताया था शायद पहले, कि ऑक्सीजन को हम जब भी लिखेंगे तो हम O2 के फॉर्म में लिखेंगे, मॉलिक्यूल के फॉर्म में। वो कभी भी ओ रेडिकल के फॉर्म में हमारे लिए फिलहाल नहीं एग्जिस्ट करेगा। एग्जिस्ट करता है, हायर क्लासेस में एग्जिस्ट करेगा, पर अभी फिलहाल O2 के फॉर्म में ही रहने दो इसे। सो नाउ दो ऑक्सीजन है, तो हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ दो से मल्टीप्लाई किया। जब से दो से मल्टीप्लाई किया तो ऑक्सीजन तो दो हो गया, पर Mg भी दो हो गया। तो Mg जब दो हो गया तो हमें इधर भी दो Mg चाहिए, तो हम इधर भी दो से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फाइनल रिएक्शन हमारा क्या बन गया, 2Mg प्लस O2 विल गिव 2MgO। ये हो गया हमारा फाइनल रिएक्शन। सो अब आगे देखते हैं आगे क्या है। ओके, तो आगे कुछ इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं।
तो पहला क्वेश्चन कह रहा है वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। तो इसे मैंने बताया था रीज़न कि मैग्नीशियम एयर से रिएक्ट करके खुद के ऊपर एक लेयर बना लेता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का, जो फर्दर रिडक्शन से उसे बचाता है या फिर फर्दर रिएक्शन होने से उसे बचाता है। इसलिए हम उसे क्लीन करते हैं ताकि जो ऊपर का लेयर है वो क्लीन हो जाए, हट जाए मैग्नीशियम ऑक्साइड का, और उसका रिएक्शन ईजिली हो सके। The second is write the balanced equation for the following chemical equation. Hydrogen plus chlorine give hydrogen chloride. तो हाइड्रोजन का क्या होगा, H2 plus chlorine Cl2 will give HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इसे बैलेंस करना। देखो दो हाइड्रोजन है, दो क्लोरीन है, तो कुछ नहीं करो, सीधे दो से मल्टीप्लाई करो, दो हाइड्रोजन हो गया, दो क्लोरीन हो गया। अब है बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट गिव्स बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड। तो इसमें बोल रहा है बेरियम क्लोराइड को एल्युमिनियम सल्फेट के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तो बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल थ्राइस reacts to give barium sulfate BaSO4 plus aluminium chloride AlCl3। तो ये हो जाएगा तुम्हारा सेकंड के सेकंड का आंसर। मैं इसका सेपरेट इन टेक्स्ट और जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका अलग एक वीडियो बना दूंगा जिसमें सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशंस होंगे, और इन टेक्स्ट का भी और एक्सरसाइज का भी। तो वो देख लेना, मैं बना दूंगा बाद में। तो ओके, हमें इसे बैलेंस भी करना है ना, तो मैं इसे फिर से एक बार लिख लेता हूँ। जगह कम पड़ गया। बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल थ्राइस गिव्स बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। तो अब हमें इसे बैलेंस करना है, ये कैसे लिखना है फॉर्मूला वगैरह वो सब आगे मैं बताऊंगा। तो हमें बैलेंस करना है, ठीक है। तो चलो, अब देखो यहाँ पे SO4 का तीन कंपाउंड SO4 के तीन मॉलिक्यूल्स है। तो हम चाहे तो इससे शुरू कर सकते हैं या फिर क्लोरीन को भी बैलेंस कर सकते हैं। क्लोरीन बैलेंस करना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो हम इसी से शुरू करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास SO4 बैलेंस हो गया, और Ba का 3 एटम्स आ गया। तो हम यहाँ पर फिर से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा Ba भी बैलेंस हो गया। यहाँ पर Ba बैलेंस हो गया, ऐसा पड़ता है ये पूरा, और ये बैलेंस्ड है। तो 3Ba बैलेंस्ड है। अब देखो Cl2 कितना 6 हो गया, और यहाँ पर 3 है, तो हम 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 6Cl2 आ गया। और एल्युमिनियम कितने, दो यहाँ पर है, दो यहाँ पर है, तो सब कुछ बैलेंस हो गया। तो जो तुम्हें आसानी से दिख जाए कि इसे बैलेंस करना आसान रहेगा, तो उससे शुरू करो तुम। जैसे SO4 हमारे पास यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल्स थे उसके, तो हम SO4 को पहले बैलेंस कर लिए। अब यहाँ पर पता नहीं चल रहा था कि किसे पहले बैलेंस करें, Cl3 को ले या फिर Cl2 को ले, इधर 3 है इधर 2 है, तो कैसे बैलेंस करें। तो उससे अच्छा कोई दूसरा ले लो। तो इसमें SO4 को हमने सिलेक्ट किया, और फिर यहाँ पर SO4 को बैलेंस किया, तो उससे हमें पता चला कि अब Ba को बैलेंस करने के लिए हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमें 6Cl2 मिल गया, तो 6Cl मिल गया। तो अब हमें अब पता तो चल गया ना कि 6Cl है हमारे पास, और यहाँ पर ऑलरेडी 3 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6Cl भी आ गया। और Al2 तो ऑलरेडी है, ये तो 2Al यहाँ भी है। तो जो तुम्हें आसानी से दिख जाए वो ले लो तुम, ठीक है। और यहाँ पर सोडियम प्लस वाटर, सोडियम प्लस वाटर विल गिव NaOH होल ट्वाइस। तो अब हमें इसे बैलेंस करना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन से बैलेंस करना है। अब तो सॉरी सॉरी, यहाँ पर NaOH होगा,
NaOH ट्वाइस नहीं। तो अब हमें इसे बैलेंस करना है। तो देखो H2 है यहाँ पर, यहाँ भी H2 है, तो इसे छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर एक O है, एक O है, यहाँ पर एक H है, तो ये हमें यहाँ पर एक H नहीं है हमारे पास, तो क्या करेंगे अब? अ, एक काम करते हैं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ भी 2 से कर देते हैं, तो हमारे पास कितना आ गया? 2H इधर और यहाँ से 2H, 4H आ गया, 4H, दो ऑक्सीजन और फिर 2Na, तो ये भी बैलेंस हो गया। तो अब थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विथ स्टेट सिंबल के साथ लिखना है फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट in water reacts to give insoluble barium sulfate and solution of sodium chloride। तो बोल रहा है कि solution of barium chloride, तो barium chloride BaCl2 solution of barium chloride aqueous plus सोडियम सल्फेट क्या होगा? Na2SO4, ये भी aqueous फॉर्म में रहेगा, टू गिव इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट। तो बेरियम सल्फेट इनसॉल्युबल बोल रहा है, तो ये इनसॉल्युबल कब होगा? जब ये सॉलिड फॉर्म में रहेगा, तभी तो ये नहीं मिक्स होगा ना, दूसरे कंपाउंड से सेपरेट रहेगा। और सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl एक्वस, सॉल्यूशन बोल रहा है तो वो वाटर के साथ मिला हुआ रहेगा, जैसे कि वाटर में जाने पर वो उसमें डिसॉल्व हो जाए या फिर टूट जाए। तो जैसे BaCl2 एक्वस वाटर के साथ एग्जिस्ट करेगा, Na2SO4 वाटर के साथ एग्जिस्ट करेगा, BaSO4 जो है वो सेपरेट रहेगा, एक तरह से PPT के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा उस सॉल्यूशन में। ओके, एंड द सेकंड इज सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन reacts in water aqueous, reacts with hydrochloric acid in water HCl in water to produce sodium chloride, to produce sodium chloride solution and water, sodium chloride solution and water। तो बैलेंस करना, तो पहले वाला देखते हैं बैलेंस्ड है यानी, तो Na एक है यहाँ पे और यहाँ पर दो है, तो हम Na को बैलेंस करेंगे तो 2Na और 2Cl2 Cl आ गया, यहाँ पर ऑलरेडी 2Cl है, एक Ba एक SO4 एक SO4, तो ये बैलेंस हो गया, बस यहाँ पर टू लगाना था और पूरा इक्वेशन बैलेंस हो गया। और सेकंड में है NaOH HCl, तो Na एक है ठीक है, OH कितना है? O कितना है? एक है, H दो है, और तो यहाँ भी दो है, Cl एक है और एक Cl है, तो ऑलरेडी बैलेंस्ड, तो इक्वेशन टू ऑलरेडी बैलेंस्ड है। तो ये था इन टेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन, और इसका सेपरेट वीडियो में मैं सबका सॉल्यूशन लिख दूंगा या फिर नोट्स दे दूंगा। और नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कि कितने टाइप के केमिकल रिएक्शंस होते हैं और वो कैसे रिएक्ट करते हैं, और एक्सोथर्मिक होते हैं या फिर एंडोथर्मिक होते हैं, वो सब नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके देन, बाय, हैव अ नाइस डे। हाँ, और हाँ एक और बात, अगर वीडियो अच्छे लगे तो यार लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और कमेंट में बताना कि और क्या कुछ मैं ऐड करूं जिससे तुम लोग और अच्छे से समझ पाओ। ठीक है, बाय।